हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल पर। तो अभी हम जा रहे हैं बोट सफारी पे। सनराइज से सनसेट तक सुंदरबन में बोट सफारी होता है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं सुंदरबन को और भी पास से। सुंदरबन में जंगल के अंदर पैदल घूमना अलाउड नहीं है। जो लोग हनी कलेक्शन के लिए, लकड़ी के लिए, मछली शिकार के लिए जंगल के अंदर पैदल जाते हैं, उनमें से कई सारे कभी कभी वापस भी नहीं आते। यहाँ सरवाइव करने के लिए बहुत रिस्क उठाना पड़ता है यहाँ के लोगों को। एक नदी से दूसरी नदी चेक करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मानव सभ्यता जैसे धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही है। चारों ओर केवल पानी और जंगल ही दिखाई दे रहा है। सुंदरबन बहुत सारे नदियों से घिरा हुआ है। यहाँ पद्मा, मेघना और ब्रह्मपुत्र का मिलन होता है बे ऑफ बंगाल में। वैसे सुंदरबन का नाम हुआ है सुंदरी पेड़ के नाम से। ये सुंदरी पेड़ सुंदरबन में बहुत सारे पाए जाते हैं। व्हाइट बेलिड सी ईगल एक टेरिटोरियल बर्ड है। इसे अक्सर समुंदर, नदी और वेटलैंड के आसपास देखा जाता है। पानी के किनारे ही किसी ऊंचे पेड़ के शाखाओं पर यह शिकार करने के लिए बैठा हुआ रहता है। इतनी सुंदर जंगल, कितनी प्राचीन। यहाँ कोई कोई जगह ऐसा भी है जहां कभी भी इंसानों के पैर नहीं पड़े। जंगल के किनारे एक पेड़ की शाखाओं पर एक कपड़ा लटकते हुए मुझको नजर आया। विक्रमादित्य दा ने बताया, ये वही आदमी का कमीज है जिसको कुछ दिनों पहले टाइगर ने अटैक किया था। ये कमीज इसीलिए वहां लटकाया हुआ है ताकि लोगों को पता चल सके कि ये एरिया में टाइगर है। लोगों को सचेत करने के लिए ही ऐसा किया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े मैनग्रोव और यहाँ रहने वाले मैन ईटर टाइगर्स इस जंगल के आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ इस गीली मिट्टी पर हमने बहुत सारे अलग अलग तरह के क्रैब्स देखे।
सफारी के साथ साथ सुंदरबन में खाना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो पेट भर के हमने नाश्ता किया और फिर से जंगल में एनिमल्स की तलाश में लग गए। টোটাল সুন্দরবন যদি বলা হয় বাংলাদেশ ধরে আমাদের টোটাল সুন্দরবন 25,500 স্কোয়ার কিলোমিটার। তার মধ্যে ইন্ডিয়া পার্টে আছে 9,630 বর্গ কিলোমিটার। এই 9,630 বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে যে জঙ্গল পার্টটা আছে, জঙ্গল পার্টটা হচ্ছে 4,264 বর্গ কিলোমিটার। এই 4,264 বর্গ কিলোমিটার দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ আর একটা ডিভিশনাল ফরেস্ট। এই টাইগার রিজার্ভটা যে এরিয়াটা আছে 2585 স্কোয়ার কিলোমিটার। এই সুন্দরবনের এই যে এরিয়ার মধ্যে বা সুন্দরবনের যে গাছপালা 84 পিসেস ম্যানগ্রোভ আছে এবং ম্যানগ্রোভ সাবস্পিসিস মিলে তার মধ্যে সুন্দরী, গরান, গেওয়া, ধুন্দুল, পশুর, বাইন, বিভিন্ন প্রজাতির গাছ, যেটা 84 পিসেস ম্যানগ্রোভ এবং ম্যানগ্রোভের সাবস্পিসিস আছে। বলতে এখানে যে সমস্ত অ্যানিমেলস থাকে, বিশেষ করে তো বাঘ তো আছেই, সবাই জানে। এছাড়াও আরও 3 প্রকারের ক্যাট আছে, যেমন ফিশিং ক্যাট আছে, লেপার্ড ক্যাট আছে, জঙ্গল ক্যাট আছে। এছাড়াও পামসিবেট আছে, জলে ডলফিন আছে। আমরা এখানে 3 প্রকার ডলফিন দেখেছি। তার মধ্যে ইরাবতী, গাঞ্জেটিক এবং ইন্দো প্যাসিফিক। এছাড়া তো জলে ওটার আছে, কুমির আছে। আর পাখি তো প্রচুর পাখি আছে, যেমন 9 প্রকারের কিংফিশার আছে এখানে প্রচুর, মানে যেটা শীতকালে প্রায় সবই দেখা যায়, এখন একটু কম। তো এছাড়া র্যাপ্টার প্রায় 8 প্রকারের র্যাপ্টার আছে, যেমন হোয়াইট বেলিড, সি ইগল, চেঞ্জেবল হগ ইগল, শর্ট-হেডেড স্নেক ইগল, অস্প্রে, এই ধরনের প্রায় 8 প্রকার। এছাড়া তো প্রচুর পাখি আছে। সুন্দরবনের বাঘ বলতে এখানকার বাঘ কিন্তু প্রচুর ট্রাগেল, মানে প্রচুর কষ্ট করে শিকার ধরতে হয়, প্লাস এখানকার বাঘ প্রচুর কষ্ট করে বেঁচে থাকতে হয়। যেমন জোয়ারের সময় জল ভরে আছে জঙ্গলে, এখানে জলে সাঁতার কেটে, মানে এখানে যে সমস্ত অ্যানিমেলস থাকে তো তার মধ্যে বাঘ তো অবশ্যই, মানে বেঁচে থাকতে গেলে সাঁতার কাটতেই হবে। এবং এখানকার জঙ্গলটা এত ঘন এবং শ্বাসমূল ঠেসমূলে যে ভরা, সেই কারণে এখানকার বাঘের প্রচুর কষ্ট হয় একটা শিকার করার জন্য। সেই জন্যই কি ম্যানইটার? হ্যাঁ, ম্যানইটার কোনো বাঘ আমরা বলতে পারবো না, কারণ হচ্ছে আমরা সব বাঘকে দেখি না। কিছু বাঘ হয়তো ম্যানইটার, কিছু বাঘ মানুষ খেয়েছে, যেমন রেকর্ডও আছে। তবে সব বাঘ ম্যানইটার আমরা বলতে পারবো না। মানে খাবার কমের জন্যই কি, খাবার কমের জন্য এটা হচ্ছে কি হচ্ছে, মানে মানুষ বাঘ কিন্তু জঙ্গলে এই লোকালয়ে গিয়ে কিন্তু মানুষ খাচ্ছে না, মানুষ কিন্তু বাঘের কাছে চলে আসছে। সেই হিসেবে মানে মানুষ একটা সহজ লভ্য, মানে সহজে পেয়ে যাচ্ছে বলেই কিন্তু মানুষ খাচ্ছে বলে আমাদের মনে হয়। लेजर एडजुटेंट सारस परिवार से है। ये एक बहुत बड़ा पक्षी है। इन्हें अक्सर वेटलैंड के आसपास ही देखा जाता है। इनके सर पर और गर्दन पर बाल नहीं होते हैं। ये मछलियाँ, मेंढक, कीट पतंग ये सब खाना पसंद करते हैं। इनका ब्रीडिंग सीजन जुलाई से जनवरी तक का होता है। हैबिटेट लॉस की वजह से ये पक्षी IUCN में रेड लिस्टेड है।
किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांपों में से एक है। किंग कोबरा सुंदरबन के मैंग्रोव वन में पाए जाने वाले एक दुर्लभ लेकिन प्रमुख शिकारी जीव है। इन्हें अक्सर नदियों में तैरते हुए या दलदल के पास देखा जाता है। छोटी मछलियां, पक्षी, मेंढक ये सब खाना ये पसंद करते हैं। एक किंग कोबरा की हाइट 19 फीट तक हो सकती है। ये लोग जा रहे हैं समुंदर में मछली पकड़ने के लिए। कभी कभी 5 से 7 दिन भी लग जाता है इनको वापस आने में। टाइगर से भी कभी कभी इनका आमना सामना हो जाता है। बहुत ही रिस्की लाइफ है, लेकिन क्या करें, काम ही ऐसा है। अभी टाइम है लंच का। सुंदरबन मछलियों का खजाना है, तो अगर आप सुंदरबन आए तो यहां का मछली जरूर टेस्ट कीजिएगा। अचानक से दूर से पानी में कुछ जाते हुए हमको दिखा। लेजर्ड व्हिस्लिंग डक एक बेहद मिलनसार और बहुत खूबसूरत प्रजाति है। इनकी सीटियों के जैसे आवाज की वजह से इनको व्हिस्लिंग डक कहा जाता है। हमको ये पानी में अपने छोटे छोटे बच्ची के साथ तैरते हुए नजर आया, जो बेहद खूबसूरत एक नजारा था। चलते चलते एक पेड़ की शाखा में हमको एक कॉलर डॉव का नेस्ट दिखाई दिया। और आगे बढ़ते हुए हमको और भी कुछ पक्षियों के नेस्ट दिखाई दिया। ग्रीन पीड वाइपर ये मुख्य रूप से एक निशाचर सांप है। इनका ये हरा रंग इनको पेड़ के अंदर छुप के रहने में मदद करता है। ये ज्यादातर पेड़ों के शाखाओं के अंदर ही रहते हैं। ये चूहे, मेंढक, छोटे पक्षियां शिकार करते हैं। बहुत ही धीमे गति से चलने वाले एक विषैला सांप है ये ग्रीन पीड वाइपर। मैं सुंदरबन में बहुत बार आ चुकी हूँ इस सांप की खोज में, लेकिन इस बार लक ने मेरा साथ दिया। इस बार टाइगर तो नहीं मिला, लेकिन पीड वाइपर ने मेरा दिल खुश कर दिया। सूरज डूब रहा है और इसके साथ साथ सफारी भी खत्म होने वाली है। तो चलिए आज यही तक, मिलते हैं और किसी नई जर्नी पर। साथ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।